Good morning, everyone. I, Professor Manohar Wak, on behalf of Arse Academy, welcome you all for the introductory session on physics. Right? Basically, when we start with the physics, before moving on to our main topic, or you can say before starting with the syllabus, few things I want to convey, or you can say few messages I want to give to you. काही तुम्हाला सांगायचं. For example, right? I can talk in Marathi also, I can talk in Hindi also, and as per our convenience, I can talk in English also, right? So better way is to have a flexible nature. I expect flexible nature from your end, right? So before starting with the session, what I want to, the basic message I want to convey is related to the current scenario of COVID-19, right? So, when we talk about the COVID-19, today's world is threatening to this particular minute level quantity, that is very small level coronavirus, right? And COVID stands for coronavirus disease. Though it's a disease, though it's a biological term, though it's a chemical term, but there is certain physics associated with it. What I want to say, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि आज की दुनिया में, आज की दिन में या फिर आज के डेट में ये छोटे से माइक्रो लेवल के वायरस ने पूरी दुनिया को हिला डाला है, राइट? और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमेशा आता है कि इट इज सर्टन सॉर्ट ऑफ डिसीज, ये कुछ बीमारी है. बट हम जब बीमारी बोलते हैं तो वहां पे आता है बायोलॉजिकल टर्म्स, राइट? सो उसका स्टडी करना वो आता है बायोलॉजिकल टर्म्स में. वो किसकी वजह से हो रहा है, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनका स्टडी करना वो आता है बायोलॉजी में. उसको क्योर करने के लिए या फिर अच्छा करने के लिए उसको क्या बोल सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल इंटरेक्शंस हो रही, दैट इज केमिकल पार्ट. बट व्हेन द पीपल्स आर एंटरिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर, जैसे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां पे मल्टीप्लिकेटिव रिएक्शंस होती है. एक बंदा 100 लोगों को ये डिसीज पहुंचा रहा है. व्हाई इज दिस हैपनिंग? This is due to the purely phenomenon of the physics, you can say, because people are moving from one place to another. हम बोलते हैं वायरस एक जगह पे बैठा हुआ है. वायरस मान लो यहाँ पे वायरस इस पेन की नोक पे. अगर मैं इस पेन को अगर हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ, ये पेन अगर जगह पे पड़ा हुआ है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पे डिसीज रहेगा. 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 14 दिन के बाद वो डिसीज अपने आप सीज होने वाला है, मर जाने वाला है. वही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, एक जगह से एक बंदे से दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं. द वे वी स्पीक, द वे वी रेंडर ओवर हियर एंड देयर, राइट? दैट इज द मेन कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिसीज. दो ओरिजिन इज बायोलॉजी, दो क्यूर इज केमिस्ट्री, बट द स्प्रेड इज फिजिक्स. So we have to control. If we want to control that coronavirus, so in that situation we can deal with the various terms associated with the physics, right? So the most important message before starting with the session of physics I want to give to you: stay home, stay safe. घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, घर ही रहा सुरक्षित. Moving on further, we will start with our regular session, right? So the basic term what I want to let you know is regarding general science. In 10th standard, up to 10th standard, you have already studied this subject, general science. Focus on the subject science and general. These are the two different words, right? When I talk about the general word, right, at that time general means what? Take an example. Take an example of general hospital. General hospital. When I talk about the general hospital, like a civil hospital, there are civil hospitals in each and every area of the country, right? When I talk about the general hospitals, each and every type of person or the patient is being treated over there. For example, if anybody is suffering from malaria, his treatment is also there. If any person is accidented or accident has been happened, at that time we can cure that person also over there. Small child vaccination,
हम छोटे बच्चों को जैसे टीकाकरण कराते हैं, वो भी वहीं पे होता है, राइट। हर एक तरीके का छोटे से छोटे बुखार को लेकर बड़े से बड़े डिसीज तक, बड़े से बड़े मिशाप तक, सब चीजें वहां पे क्योर कराई जाती है। मीन्स व्हाट? When I focus about the word general, it's a hospital. It's a hospital, but how? Its nature is general hospital. Means each and every type of diseases will be covered or cured over there, treated over there. Similarly, but when we talk about the specialized hospital, ENT hospital, eyes, nose and throat hospital, cancer hospital, child care hospital, right? So there is certain specialization. हर जगह का खुद का एक स्पेशलाइजेशन होता है। उसी तरीके से जब तक हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जो भी कुछ साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ी है, वो सब चीजें आती है हमारी इस टर्मिनोलॉजी में, जनरल साइंस। नाउ ब्रीफली अगर हम आगे जाते हैं तो ये जनरल साइंस को हमने 3 चीजों में कैटेगराइज किया है, राइट। So before moving on to these 3 different streams, I just want to let you know few basic things about the science. मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि साइंस ये जो वर्ड है, ये साइंस वर्ड एक ग्रीक वर्ड साइंशिया, इस वर्ड से प्रोड्यूस हुआ है। What is meaning of scientia? It's a Greek word. Its meaning is to know. Science means what? To know something, to discover something. Scientia, right? And in Hindi we call that science as Vigyan, or in Marathi Vignan, right? So जब हम बातें करते हैं कि साइंस के बारे में, जब बातें करते हैं कुछ ना कुछ जान लेना, that is Scientia, उसका स्टडी, हर एक चीज का स्टडी, उस साइंस को बोलते, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं हम साइंस, राइट। The father of science was Aristotle. The father of science was Aristotle. This we have already studied in 6th to 7th. अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप? 6th स्टैंडर्ड की चीजें हम हमें अभी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि आप बहुत दिनों से घर पे हो, 3 महीने हो चुके हैं। 3-4 महीनों से सिर्फ हमने खाया है, टीवी देखा है, एंजॉय किया। ब्रश अप करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है वो बताना जरूरी है। जैसे कि who was the father of science? Aristotle. From what the word science has been derived? Scientia. What's the meaning of scientia? Scientia means to know, and what we call science in Hindi, Marathi, that is Vigyan or Vignan respectively, right? To be specific, under this science stream there are 3 different streams. First stream is physics. Physics in Hindi, or you can say in Marathi, we can call it as भौतिक शास्त्र. Second stream of the science is chemistry. That is nothing but rasayan shastra. I think my Marathi is not that much clear, but I can write down like this also, rasayan. I am confused about the words, no, whether it is first or second, but fine, not an issue. We are going to learn here the basic terminology, right? And the third one is biology. That is nothing but Jeev Shastra. These are the branches of the physics. One branch of the science which studies the, or under which we study what is happening around the globe, what is happening around the world. दुनिया में क्या हो रहा है, हर एक चीजें कैसी इवॉल्व हो रही, हर एक चीजों के पीछे जो कुछ स्टडी लगा हुआ है, उस स्टडी को हम बोलते हैं फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स, हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, all the natural phenomenon occurring around the world is called as physics. फिजिक्स ये वर्ड जो है, फिजिक्स ये वर्ड जो है, ये फुजिस इस वर्ड से आया है। ये भी ग्रीक वर्ड ही है, फुजिस। फुजिस मीन्स व्हाट? इट्स अ नेचर, इट्स अ नेचर। इससे ही पता चल जाता है नेचर मीन्स भौतिक।
नेचर का स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम फिजिक्स। उसको प्रॉपर वर्डिंग हमने कन्वर्ट किया है टू एक्सेप्ट इट एज अ ग्लोबली और इंटरनेशनली, हम उसे बोलते हैं फिजिक्स। सिमिलरली किसी भी केमिकल्स का स्टडी करना, वो होता है आपका केमिस्ट्री। वो हम डीप में जाने नहीं वाले बिकॉज इट्स अ लेक्चर ऑफ फिजिक्स, बट टू लेट यू नो यू कैन से स्टडी ऑफ केमिकल्स or chemical reactions, that is really come under the chemistry part. And third one is all the biological terms, or you can say study of life, you can say life science, भले वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उससे रिलेटेड स्टडी जो है वो बायोलॉजी में आता है। मूविंग ऑन टू फिजिक्स, बिकॉज वी आर हियर विद फिजिक्स. So I am giving just the hierarchy of the science. Under science, physics, chemistry and biology. Under physics, there are two different domains. First domain is ancient physics. मतलब पुराने जमाने में होने वाला physics. Second domain is modern physics. What is difference between ancient and modern physics? I will let you know. किस तरीके का इन दोनों में डिफरेंस है वो चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि ये एंशिएंट फिजिक्स, किसी भी फिजिक्स को हम पुराना फिजिक्स कैसे बोलते हैं, नया वाला फिजिक्स कैसे बोलते हैं, इसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हम बेसिकली दो डोमेन यूज करते हैं। इन दो डोमेन के हिसाब से हमने ये बनाया है। वो डोमेन कौन कौन से हैं? फिजिक्स को हम दो डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। एक है एनर्जी, दैट इज ऊर्जा, एंड सेकेंड वन इज मैटर, राइट। मैटर्स को बोलते हैं पार्टिकल्स एंड ऑल, राइट। उसको हिंदी में शायद नाम थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। पार्टिकल नेचर, और यू कैन से particle, draw. Matter means draw. You can say draw. So when I am talking about the energy and the matter, remember physics का स्टडी इन दोनों टर्मिनोलॉजी से ही आगे जाता है। जैसे कि मैं जब बोल रहा हूं कि matter means what? Matter is something that occupies space, जिसको जगह लगती है। अपने हाथ में कुछ तो भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैटर। ये बेंच है, एवरीथिंग, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वी आर मैटर। ईच एंड एवरी एंटिटी लिविंग ऑन द अर्थ, दैट इज मैटर, राइट। सेकंड थिंग, दूसरी चीज, मैटर जैसे स्पेस ऑक्युपाई करता है, एनर्जी के लिए स्पेस की जरूरत नहीं होती है। स्पेस नॉट नीडेड, स्पेसिफिक स्पेस देने की जरूरत नहीं है। मैटर हैज मास, मैटर को खुद का मास होता है, खुद का वेट होता है। एनर्जी को खुद का मास वेट कुछ नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं हम इट्स अ मासलेस थिंग, इट्स अ मासलेस, राइट। इसको स्पेस लगती है, इसको स्पेस नहीं लगती है, मास नहीं लगता है। मैटर स्टडी करने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस की जरूरत है, प्रॉपर मास की जरूरत है, राइट। और ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों का स्टडी जब डीपली, बेसिकली हम तीन फिजिसिस्ट बोलते हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन एंड मैक्स प्लैंक। इन तीनों फिजिसिस्ट ने जो भी कुछ कंबाइनली, जो भी कुछ एफर्ट्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तीन फिजिसिस्ट मतलब तीन ही है। There are many physicists in the world who have contributed to the development of the physics, who have contributed to the development of science. But at this instant, why I am focusing on these three? Because 80% of the physics part will be, or each and every theory or terminology or the laws, what you can say, experimentations will be demonstrated or will be explained under this particular three physicists. That's why Newton is there, Einstein is also there, right? So these are the various three physicists who have contributed more to the development of the physics. So when I focus about the
physics terminology. Under physics, when I am studying the energy and matter, remember, one more thing I forgot to mention. Energy is invisible. Energy is invisible in nature. Matter is visible in nature. We can touch it. These are the three differences. Now, based on these two differences between energy and matter, एनर्जी और मैटर के डिफरेंसेस पे हमारा ये डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है। कौन सा? एंशिएंट फिजिक्स क्या होता है और मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। एंशिएंट फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो फिजिक्स का स्टडी 19th सेंचुरी से पहले, मतलब 1900 ईयर के आगे वाला, पीछे वाला पार्ट, वो जो स्टडी है वो स्टडी आता है हमारा एंशिएंट फिजिक्स के अंदर। वो जो दिया है उसके लिए मेन साइंटिस्ट, नॉट साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, वो है न्यूटन, आइंस्टाइन न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन वाज द फिजिसिस्ट who have contributed in tremendous way, who have given each and every theories, Newton's law of motion, Newton's law of gravity, kinematics and all, each and every theory किसने दिए हैं? एंशिएंट फिजिक्स के अंडर न्यूटन ने दिए। तो हम बोल सकते हैं कि 1900 साल के पीछे वाले जो भी साइंस रिलेटेड स्टडी था, फिजिक्स रिलेटेड स्टडी था, वो स्टडी आता था हमारा एंशिएंट फिजिक्स में। और 1900 के बाद में आफ्टर 1900, and this will be your before 1900. So ये जो आफ्टर 1900 स्टडी था, बेसिकली हम बोल सकते हैं 1905 में स्पीड ऑफ लाइट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन गिवन बाय द आइंस्टाइन, राइट? सो दिस वाज गिवन बाय स्पीड आइंस्टाइन्स इक्वेशंस एंड ऑल, राइट? सो यू कैन से दिस पर्टिकुलर स्टडी आफ्टर 1900th century or 19th century, that comes under modern physics. Before 19th century, that comes under ancient physics, right? Second thing, ये इनमें डिफरेंस क्या है as far as these points are related, as these points are concerned? ये जो है एंशिएंट थ्योरी बोलती है कि इन दोनों में कुछ एक जैसा नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है। Means you can say matter and energy are non-convertible, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हालांकि ये थ्योरी बोलती है कि there is certain relation between matter and energy, and matter and energy are interconvertible, मतलब matter can be converted to energy, energy can be converted to matter, convertible, right? अब हमें इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है और इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है। अब हम जाते हैं कि मॉडर्न और एंशिएंट फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे मैं बोलता हूं एंशिएंट फिजिक्स के अंदर अलग अलग शाखाएं पढ़ी जाती है। देयर आर वेरियस ब्रांचेस अंडर एंशिएंट फिजिक्स। फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स। हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स के अंदर आता है स्टडी ऑफ मोशन। दूसरी ब्रांच आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उस चार्जेस का स्टडी वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तीसरी ब्रांच आती है मैग्नेटिक्स, मतलब मैग्नेटिक ऑल द मूवमेंट जो है, मैग्नेटिज्म बोलते हैं उसे हम, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट रिलेटेड और मैग्नेट प्रॉपर्टी जो भी है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, उसका स्टडी आता है मैग्नेटिज्म में। आगे वाला पार्ट आता है लाइट एनर्जी, राइट? लाइट एनर्जी का स्टडी जो होता है वो उसके अंदर आता है एंशिएंट फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट। सो हीट से रिलेटेड जो भी कुछ स्टडी है वो स्टडी आता है हमारा एंशिएंट फिजिक्स के अंदर।
हम यहां से यहां पे आ रहे हैं, मेरा ये जो पार्ट था ये पार्ट अभी ये कवर कर रहा हूं, राइट। सो एंशिएंट फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, लाइट प्रॉपर्टी और यू कैन से लाइट को हम बोलते हैं जैसे ऑप्टिक्स वगैरह है उसके स्टडी जो है वो लाइट के अंदर आते हैं, और थर्मोडायनामिक्स, ये सब अलग अलग मोशन का स्टडी, चार्ज का स्टडी, मैग्नेट का स्टडी, लाइट का स्टडी, हीट का स्टडी, राइट, दैट विल कम अंडर एंशिएंट फिजिक्स। और जब हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बोलते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है न्यूक्लियर साइंस। Nuclear related all the activities, nuclear fusion, fission, bomb, explosions and everything. Nuclear phenomena will be covered under this modern physics. And second one is electronics. Nowadays जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, this is the way I am talking to you, I am communicating. यहाँ पे क्लासरूम लेक्चर नहीं है, तो भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ. That is why, that is due to the gift of electronics. So this comes under the modern physics. This was all about the introduction to the physics. जैसे कि बहुत सारे बार एक सवाल आता है कि फैन क्यों घूमता है, राइट, यूनिवर्स एग्जिस्टिंग कैसे हो रही है, थंडरस्टॉर्म्स कैसे आते हैं, लाइटनिंग कैसे आ रही है, रेनबो कैसे बनता है, हाउ वी कैन टॉक, हाउ वी कैन वॉक, राइट, हाउ वी कैन कम्युनिकेट ओवर द फोन. The answer of all these different puzzles or the questions is there inside the world called physics. So in next lecture, that is up to here only, in next lecture we will start with the 11th science first topic, or you can say first lecture first topic, that is measurements and the units, right. Thank you very much.